हाय रचित, हाउ आर यू? हेलो मैम। आई एम गुड, आप बताओ। हाँ, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मतलब आजकल तो मुझे ये इनिशिएटिव जो मैंने स्टार्ट किया है ना, विथ लाइक चैटिंग विथ माय स्टूडेंट्स, मेरे को ये इसमें बड़ा अच्छा लग रहा है। मींस हर रोज मतलब आई एम गेटिंग टू लिसन टू न्यू व्यूज एंड टॉक टू पीपल। सो व्हाट अबाउट यू Also लाइक? मैम, I think it is even also a pleasure for us to share our certain opinions or experiences with you so that we can help eventually our juniors या जो भी colleagues हैं sort हाँ of, हाँ, so that is यस enriching यस in that sense as well. Yes, yes, that's the motive. That's perfectly the motive. Acha, okay. First, let's start with you, Rachit. Okay. First, let me introduce Rachit. Rachit Jan is like right now he's my student. Okay, means he's not a pass out yet, and he will tell you. And Rachit has been honored with being the best student of our college this year. And congratulations, Rachit. वैसे and I was like so happy when I got to know he was so deserving to become the best student of our college this year. So Rachit, आपका अभी क्या status है engineering में बताओ? So ma'am, currently I'm studying computer science and I'm in the fourth year, so technically I'm not even a graduate yet. Yes. And so even like after 2 to 3 weeks after we would be done with our final year exams, and then I would be done with the BTech. ओके ओके। मतलब गलत टाइम पे पैंडेमिक आ गया ना। मतलब ये वाला टाइम कितना स्पेशल होता है ना एक पासिंग आउट Actually, स्टूडेंट के लिए। ma'am, this semester has sort of elongated to around 9 or 10 months, and even farewell seems to be unlikely in this current scenario. तो मतलब हाँ, अनलाइकली मतलब in क्या that मिस हो sense गया? काफी हम मिस ही हो गए, काफी frustrating तो है, मतलब obviously pandemic वाला time. यस यस, मीन्स आई थिंक मतलब अभी तक मैंने जितने लोगों से बात किया है, मीन्स आप मेरे को सबसे एकदम करंट सिनेरियो देने वाले हो, है ना? Yes, ma'am, possibly. ओके, अच्छा, ओके। फर्स्ट टेल मी, आपने फॉर एग्जांपल राइट नाउ यू आर इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, सो आपने हाउ डिड यू चूज कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग? So frankly, ma'am, I think at that time there would be two factors in play. पहला था जो most dominant and the common among all people is कि हाँ जी 10th में हम enroll हो गए थे कोचिंग इंस्टीट्यूट में, वहाँ यही IIT, AIEEE and so on other exams के लिए we used to prepare. तो इन दैट सेंस ना तो हमारा सिस्टम या इन पर्टिकुलर पीयर्स या पेरेंट्स गिव अस एन ऑप्शन टू एक्सप्लोर डिफरेंट करियर पाथ्स इवन आफ्टर हैविंग एनरोल्ड इन पीसीएम और साइंस इन पर्टिकुलर. तो पहला तो रीजन मोस्ट लाइकली वही था कि एक इंजीनियरिंग की जैसे कहते हैं ना एक हवा सी बनी हुई थी कोचिंग में या घर पे कि अच्छा करनी तो इंजीनियरिंग ही है इन पर्टिकुलर, और उसमें भी कंप्यूटर साइंस, क्योंकि लोग ऑब्वियसली कहते हैं जो बहुत ज्यादा स्कोप है, ये सब है, वो सब है, एंड सॉर्ट ऑफ दैट थिंग. And the other, I think the 30% जो reason रहा होगा, more of a personal one. Like I was tech savvy since my school days and enjoyed writing insightful reviews on mobile phones and latest gadgets on a leading website at that time. And additionally, I also enjoyed studying maths. Apart from the regular curriculum, I learned various facets beyond the course outline that may have been irrelevant to the exam point of from the exam point of view or something. तो उस सेंस में दैट पैशन फॉर टेक्नोलॉजी coupled with the keen interest for maths eventually led me to opt for computer science engineering because I felt that would be a blend of these two things in that regard. तो ओके मेरा जो पर्टिकुलर रीजन था वो ये रहा होगा कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग ओके। का. अच्छा, रचित एक बात बताना, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे टाइम पे, मतलब मैं मे बी लॉन्ग टाइम बैक आई हैव आल्सो डन इंजीनियरिंग, यू आर राइट नाउ अ इंजीनियरिंग स्टूडेंट। व्हाट मेक्स इंजीनियरिंग, मतलब इंजीनियरिंग एज अ सब्जेक्ट, एज अ प्रोफेशनल डिग्री, हमारे कंट्री में इंजीनियरिंग इतना पॉपुलर एंड इतना इतना ज्यादा, लाइक जैसे कहते हैं ना हर सेकंड स्टूडेंट यही पढ़ना चाहता है, ऐसा क्यों है? हाँ हाँ, एंड व्हाई दिस ट्रेंड इज स्टिल मतलब गोइंग ऑन? so this pervasive nature of engineering, I think, is attributable to the fact that it is holistic in nature. It just not inculcates you with the technical knowledge per se of like अगर तुम CSC में तो ऐसा नहीं कि तुम मशीन लर्निंग या AI ये सब कर रहे हो या EC वाले कुछ और कर रहे हैं. मतलब ओवरऑल जो काफी रिगरस करिकुलम रहता है, जैसे कि इन टर्म्स ऑफ असाइनमेंट्स कह लो, केस स्टडीज कह लो, प्रोजेक्ट्स, अब आजकल हैकाथॉन्स आर प्रिटी कॉमन दीज डेज, इंटर्नशिप्स, रिसर्च पेपर्स। research papers in particular. So you get a chance to interact with a lot of people through events and indulge in lot many things, from extracurricular, ranging from extracurricular to so many other things. So उस पर्सपेक्टिव से देखें तो होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए स्टूडेंट के लिए मेरे को लगता है इंजीनियरिंग काफी कुछ हमको एक्सप्लोर करा देता है कि अब हम इस पोजीशन में होते हैं कि अब हमें आगे लाइफ में क्या करना है.
हमारी वो ट्रेनिंग सॉर्ट ऑफ जो है, वो एजुकेशन जो है उस सॉर्ट ऑफ से बीटेक से कंप्लीट हो जाती है, जो मेरे को लगता है। Right. Okay, so like मुझे I remember I have like taught you also pretty recently I'll say. So मुझे याद है आप जब फर्स्ट ईयर में थे एंड मतलब इवन जब आप सेकेंड ईयर में डिपार्टमेंट में आए, so मुझे याद है उस टाइम पे you used to be a very quiet student, like quiet in the sense मैं I will like to use the word shy here. So आप like उस टाइम पे interaction थोड़ा कम करते थे, मे बी आपके एक दो फ्रेंड्स होंगे, बट अदर देन दैट आपका like you know you आप किसी बड़े ग्रुप में इंटरेक्ट नहीं करते थे, बट हाँ फैकल्टीज के साथ जितना जरूरत है उतना करते थे. तो आपको क्या लगता है कि वो नेचर जैसे फॉर एग्जांपल नाउ राइट नाउ आप अभी भी वैसे ही हो, अभी आप लाइक आप थोड़ा सा ज्यादा जैसे कहते हैं ना यू हैव अंडरस्टूड नेटवर्किंग, या यू आर स्टिल लाइक यू बिलीव कि दैट शाइनेस और दैट रिजर्वनेस इज देयर? तो मैम आई थिंक क्वाइट कहना तो मे बी सही ना हो, क्योंकि आई रिमेम्बर माई स्कूल पीटीएम्स वेयर ईच टीचर वुड लेबल मी एज अ चैटर बॉक्स मोस्ट लाइकली. रियली? तो मैम दिस इज एक्चुअली ट्रू, लाइक फॉर कंसेक्यूटिव 3 or 4 पीटीएम्स ईच टीचर एट द एंड वुड बी कि हाँ पढ़ाई लिखाई में अच्छा है, वो सब ठीक है, बट ही इज अ वेरी टॉकेटिव गाय, मतलब पूरे टाइम बातें बातें करता रहता. ओके. तो मतलब हाँ, मतलब आई मे नॉट बी रिलेटिवली ग्रेगेरियस as my other colleagues are, but I am very comfortable interacting within my close knitted circle of friends in that way. तो जैसे फर्स्ट ईयर में हाँ, as you rightly mentioned, मैं उतना इंटरेक्ट वगैरह तो अपने दोस्तों से नहीं करता था, बट what helped me at that time in particular, जैसे जहाँ लोगों को जानने का एक मौका मिला था, जैसे मैम आपको याद होगा उदित और मैंने वो कॉलेज की ऐप बनाई थी माई बीवीपी. यस यस, आई एंड रिमेंबर वी शोड इट टू यू द फर्स्ट टाइम. यस. तो उसके थ्रू जैसे थोड़ा और कलीग से, ब्रांचेस से, लोगों से बातचीत हुई थी कि हाँ यार ये देखो हमने कॉलेज के लिए कुछ बनाया है, सो एंड सो है, कुछ सपोर्ट कर दो, फलाना ढमकाना. तो उस सेंस में थोड़ी जैसे बातचीत हुई थी. प्लस फर्दर आई रिमेम्बर जैसे फर्स्ट ईयर में एंड में आपके साथ और शिल्पा के साथ वो हैकाथॉन ऑर्गेनाइज करा था, एंड्रॉइड एपेटाइट, इफ आई करेक्टली रिमेम्बर द नेम. यस ऑफ कोर्स. तो उसके थ्रू जैसे इवेंट मैनेजमेंट एक्टिविटीज, आई थिंक दे ऐड अनदर डायमेंशन टू योर करियर. जैसे सीनियर से इंटरेक्ट करते हो, चीजें सीखते हो यार कि कॉलेज में कैसे चीजें प्रमोट होती हैं, कैसे ऑर्गेनाइज होता है. तो उस सेंस में मेरे को लगता है काफी इंटरेस्टिंग था. प्लस विद टाइम, विद द पैसेज ऑफ टाइम, आई बिलीव जैसे सेकंड थर्ड ईयर में हम काफी, आई वाज वेरी इंटरेस्टेड in playing football. मतलब through the years, I think I have learned more about life through this particular activity, like watching and playing, having grown up. तो जैसे 15-20 लाइक माइंडेड दोस्तों का जो ग्रुप होता था क्लास का ही, हम काफी फुटबॉल पे जैसे डिस्कशंस करना ऑन मैचेस या खेलना ग्राउंड में. तो आई हैव वेरी फॉन्ड मेमोरीज ऑफ दैट. तो उस सेंस में मैं थोड़ा जो ओपन अप हुआ हूँ पॉसिबली वैसे होऊंगा, बट स्टिल आई थिंक एज ऑफ इवन एज ऑफ नाउ I consider myself as a social recluse, because I think you would not find me on Facebook, Snapchat or anywhere else apart from the essential platforms like WhatsApp. WhatsApp तो like अब ऑक्सीजन जैसे ही बन गया हमारे लिए कि रह नहीं सकते. तो इन दैट सेंस हाँ, मेरा नेटवर्किंग या वो सब कह लो थोड़ा इंटरेक्शन उस सेंस में इवन जूनियर से या अपने कलीग से उतना ज्यादा नहीं है. बट येट आई लाइक सॉर्ट ऑफ कह लो टॉकेटिव इंट्रोवर्ट कह सकते हो मेरे को, अगर okay, that's an interesting term, talkative introvert. Okay, that's a very I've never heard of it. वैसे you know आपने जो mention किया ना रचित कि maybe मेरा networking थोड़ा कम है, no, social media पे present रहना is not networking. Okay, it is networking is basically actually ये जो आपने कहा ना interaction, तो that interaction can have any medium, be it social media or normally physically. तो ये मतलब just because some people are like you know sharing their life on social media, that doesn't make them network well. Okay, network well is being able to have a conversation with people. That is called networking, है ना? right ma'am. Okay, so उस सेंस में इवन जैसे आजकल के टाइम में भी सोशल मीडिया से जो मेरे को सॉर्ट ऑफ फील होता है, सोशल मीडिया से या गेमिंग से, जैसे पबजी वो तो मतलब सॉर्ट ऑफ बैन हो गया रिसेंटली, बट ऐसी गेम्स तो आती रहेंगी. सॉर्ट ऑफ जो इंटरेक्शन है फेस टू फेस का, विच आई थिंक रेंडर्स अवर लैंग्वेज एंड सोल द एंटायर पर्पस, वो सॉर्ट ऑफ रिडंडेंट सा हो गया, एक कॉन्सेप्ट ऑब्सोलीट सा हो गया सॉर्ट ऑफ सोशल मीडिया के थ्रू. जो मेरे को लगता है आजकल उतनी इंटरेक्शन होती नहीं है, मतलब अपार्ट फ्रॉम 4 दीवारों में अगर रह रहे हो आप, तो फोन लैपटॉप उसी में लोग लगे रहते हैं. उस सेंस में थोड़ा लिमिटेड है स्टिल, मतलब
Okay. So like I'll come to this social media part in a bit, but उससे पहले मतलब आपसे मैं थोड़े से curriculum related questions पूछना चाहूंगी. So Okay. ये जो इंजीनियरिंग कॉलेजेस का जो करिकुलम होता है जिसमें आपके क्लास टेस्ट होते हैं, आपके नॉर्मल सेशनल टेस्ट होते हैं, फिर आपके सेमेस्टर एग्जाम्स होते हैं, सो आपको क्या लगता है कि ये जो एग्जामिनेशन बेस्ड सिस्टम है दैट मतलब डज दिस हेल्प द स्टूडेंट्स और लाइक दे मेक द स्टूडेंट मोर इनटू लाइक यू नो एग्जाम बेस्ड स्टडिंग कि ओके इस एग्जाम में इतना मेरे को करना है, इतना पढ़ना है, मैं इतना पढ़ के आई विल गिव द एग्जाम, देन आफ्टर द एग्जाम यू नो क्या पढ़ा था उसका कोई मतलब नहीं है. सो आपको मतलब मेरा क्वेश्चन इज बेसिकली ये जो दिस एग्जाम बेस्ड सिस्टम, क्योंकि इंजीनियरिंग प्रोफेशन में इंजीनियरिंग स्टडीज में बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं लाइक सारे कॉलेजेस में. सो डज दिस एग्जाम बेस्ड सिस्टम डज दिस हेल्प द स्टूडेंट्स? तो मैम फ्रैंकली तो जो एग्जाम बेस्ड सिस्टम कह लो या कैटेगराइजेशन कह लो सॉर्ट ऑफ जो स्टैंडर्ड सेट करे जाते हैं, मेरे को मेन पर्पस तो सॉर्ट ऑफ ये लगता है कि तुम्हारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है लोगों को, सो दैट यू कैन इफेक्टिवली मैनेज समवन यू नीड टू हैव मेट्रिक्स कि एक सर्टेन क्राइटेरिया जैसे बना देते हैं कि अच्छा हाँ इतने लोगों के लिए ये तो बेसिक चाहिए. इन दैट रिगार्ड आई फील दैट जो करेंट सिस्टम एग्जाम का है दैट शुड बी देयर, but along with that there should be a sense of freedom in opting for things we want, which I believe with the new education policy that sort of provides us a glimpse into a better future in that regard कि मैं अगर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ, मैं अगर फिलोसफी या साइकोलॉजी या आर्ट या ज्योग्राफी किसी चीज में इंटरेस्टेड हूँ, आई कैन परस्यू दैट एडिशनली एज वेल. ऐसा नहीं है कि आई एम लिविंग इन दैट अंडर दैट पैरोकियल व्यू जहां भाई मैंने एक बार कंप्यूटर साइंस ले ली तो मेरे चारों मतलब दीवारें बंद हो गई कि अब मैं और कुछ कर नहीं सकता. तो उस सेंस में मेरे को लगता है कि हाँ एक डेफिनेटली एक फ्रीडम सॉर्ट ऑफ होना चाहिए टू एक्सप्लोर डिफरेंट थिंग्स एंड टू डू दैट आई थिंक एक कल्चरल ओवरहॉल नीड्स टू बी डन जहां लोग तुमको मतलब ज्यादा जजमेंटल ना हो, ज्यादा क्रिटिसाइज ना करे, जहां ये ना कहे कि अच्छा यार इसने तो अपने 2 साल वेस्ट कर दिए, बीटेक में था, इसको पसंद नहीं है, छोड़ दी तो यार छोड़ दी, कोई इशू नहीं है उसमें. यू ट्राइड समथिंग फॉर 2 years, यू डिड नॉट लाइक द कोर्स और द entire idea of pursuing engineering. There is nothing wrong or cruel or कोई crime नहीं है करना. You are exploring different things, and even as a student, I am not sure of what I would be pursuing in future. There is something I am searching for, but I'm searching for something, but yet don't know what that is. So I think having that lack of clarity in life is definitely a bit discomforting, but has to be accepted or embraced. क्योंकि मतलब एज यू इवॉल्व तुम्हारे ओपिनियन चीजें बदलती हैं, तो उस सेंस में एजुकेशन मेरे को लगता है होलिस्टिक होनी चाहिए. एग्जाम बेस्ड सिस्टम डेफिनेटली शुड बी देयर, बट इतना फोकस जितना हमारे पेरेंट्स ने, फैमिली ने, सिस्टम ने जितना बना रखा है कि आईआईटी नहीं हुआ तो जीवन खत्म हो जाएगा, आगे कैट नहीं हुआ तो और कुछ कर नहीं सकते, उस टाइप का आई थिंक सिनारियो नहीं होना चाहिए. पीपल शुड बी अप्रिशिएटिव एंड सपोर्टिव ऑफ जो भी कोई बंदा जो कुछ कर रहा है. ठीक है यार, अगर उसको ही फाइंड्स कंटेंटमेंट इन डूइंग दैट, एक सेटिस्फैक्शन लेवल है, तो देयर इज नथिंग रॉन्ग इन परस्यूइंग दैट. So that is my personal take on that. Yes, ये जो आपने कहा ना कि satisfaction and अगर he or she is content in what they are doing. देखो यहाँ पे मतलब basically मुझे लगता है कि parents and elders उनको basically ये चिंता होती है when they talk about future. They basically हमारा जो society है, it is very it measures success with materials. Like later on in life, you're earning a lot, you are buying a house, you're buying a car, you're having a luxurious life. But मतलब लोग वहीं तक सोचते हैं. तो आपको क्या लगता है कि यू नो दिस मतलब जैसे यू नो इंजीनियरिंग एक ऐसा प्रोफेशन बन गया है जिसमें लोगों को लगता है कि हम प्रोफेशनल डिग्री करेंगे तो हमें जॉब मिल जाएगी. सो इज इट लाइक आपने अपने पीयर्स में या खुद में ऐसा देखा है क्या, लाइक लोग इसीलिए इंजीनियरिंग कर रहे हैं क्योंकि दे वांट टू गेट प्लेस्ड इन गुड जॉब्स? और मैम देखो, एक तो आई फील देयर आर डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स टू एवरीथिंग. तो जो 2 things which I can think of, एक तो एक पर्सन का बैकग्राउंड इज वेरी इन्फ्लुएंशियल. इफ आई एम कमिंग फ्रॉम लेट्स से फाइनेंशियली नॉट सो गुड बैकग्राउंड, मेरे लिए सॉर्ट ऑफ मोटिवेशन रहेगा अपनी फैमिली को सपोर्ट करना फाइनेंशियली सो दैट आई अर्न वेल. तो उस सेंस में अगर मैं इंजीनियरिंग ले रहा हूँ, सपोज अगर मेरे को लगता है अच्छा यार यहाँ पे प्लेसमेंट अच्छी है, एंड मेरे लिए अगर वो पिरामिड की जैसे बात करते हैं, जो बेसिक्स आर की रोटी कपड़ा मकान, जैसे आपके पास बेसिक होंगे तब आप हायर लेवल ऑफ फिलोसफी पे उतर सकते हो, जहां आप एक्चुअल में अपने इंटरेस्ट, पोटेंशियल, सॉर्ट ऑफ स्पिरिचुअलिटी की ओर आप कह लो बढ़ते हो. बट इनिशियली तो आई थिंक एक पर्टिकुलर पर्सन अगर उस बैकग्राउंड से है, उसके लिए प्रायोरिटीज थोड़ी अलग होंगी.
बट स्पीकिंग फॉर माई सेल्फ, आई थिंक मेरे को ऐसा कुछ इशू नहीं है कि ना फैमिली में ना पेरेंट्स में ऐसा कुछ सॉर्ट ऑफ कह लो प्रेशर नहीं है या बर्डन नहीं है कि यार मेरे को इतने रुपए कमाने हैं या इंजीनियरिंग मैंने इसलिए ली कि मेरे को कल को बहुत अच्छी नौकरी चाहिए. इट इज जस्ट समथिंग. एक तो ऑब्वियसली एज आई मेंशन कि एक तो हवा में चीजें होती हैं कि यार अच्छा लोग कर रहे हैं, चलो तुम भी एक नाव है पानी में बह रही है, तुम बैठते हो, तुम फ्लो में चले जाते हो. एक तो वन थिंग इज ऑलवेज दैट इन द इंडियन सिस्टम. बट अदर देन दिस मेरे लिए आई थिंक देयर इज which I am searching for is something much more meaningful and purposeful for me, irrespective of the amount of money. ये नहीं कि पैसा मैटर नहीं करता, but it is not the sole purpose that drives me. It is not the main motive कि मैं अच्छा कोई फिगर नहीं है मेरे पास इतना रुपए हो, ये कंपनी हो, फलाना ढमकाना हो. मेरे को ये है कि एक पीस ऑफ एक पीस ऑफ माइंड रहे मेरा, इंटरेस्टिंग लगे चीज करने को, और थोड़ा एक सॉर्ट ऑफ मीनिंगफुल एंड पर्पसफुल हो काम, वेयर आई एम एबल टू इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट इनटू समथिंग that is allowing me to sleep with peace at night. So that is my entire outlook about this particular thing. Okay, that's really interesting. Means ठीक है, मतलब given you are just in final year and you can say this कि मेरा ये motive है life में, मतलब very impressive. Okay, so like मेरे को यहाँ पे जानना है, जैसे for example when you were in when you were in second year or first year, आपको जैसे कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग में प्रोग्रामिंग पे काफी एम्फेसिस दिया जाता है, बिकॉज हमारे कंट्री में फॉर्चुनेटली और अनफॉर्चुनेटली सारी प्लेसमेंट्स ज्यादातर सॉफ्टवेयर आईटी कंपनीज में ही होती है. सो आपको पहले से स्कूल से कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती थी, C++ और C, और आपने कॉलेज में आके ही फ्रॉम द स्क्रैच शुरू किया? सो हाँ मैम, 11th में हमारे शायद पाइथन आउट करी हुई थी स्कूल ने. एट दैट टाइम आई थिंक काफी नई सी लैंग्वेज थी, सॉर्ट ऑफ उतनी फेमिलियर भी नहीं थे लोग, तो एक बैकग्राउंड तो था. एंड डेफिनेटली व्हेन यू आर स्टार्टिंग ऑफ विद पाइथन विदाउट इवन सीइंग दो स्केरी सिंटैक्स ऑफ C या C++, तो नेचुरली मजा तो आता है कि यार अच्छा इतना सिंपल एंड ब्यूटीफुल सा सिंटैक्स स्ट्रक्चर है लैंग्वेज का. तो एंड मोर फोकस यूज्ड टू बी ऑन मैथमेटिकल लॉजिक सराउंडिंग दैट, नॉट on the syntax of those things. तो डेफिनेटली एक तो जो मेरी परसेप्शन कंप्यूटर साइंस के बारे में वहां से तो अच्छी बनी थी कि हाँ ये इंटरेस्टिंग है. बाकी कॉलेज में आके जैसे C++ का जितना सुनने में आया हमें कि अच्छा ये फाउंडेशनल लैंग्वेजेस हैं जिनको लर्न करना जरूरी है, एंड पाइथन इज समथिंग जो आप बाद में सीखो जब वंस आपने चीजें सीख ली हैं, जो मेरे को एटलीस्ट समझ में आया. क्योंकि मोस्ट ऑफ द कंपनीज इवन इन द करंट सिनेरियो आर लुकिंग फॉर स्टूडेंट्स हु एक्सेल इन C और C++, दीज लैंग्वेजेस. तो उस सेंस में आई थिंक जो करिकुलम भी है that is also shaped in such a manner which makes you fluent in these languages first before proceeding to other higher languages like Python or so and so. तो हाँ कॉलेज में मैंने C++, Python ये सब सीखे हैं, एंड आई वुड नॉट से कि आई एम टेक्निकली काफी बहुत मैं कुछ महान तो नहीं कहूँगा डेफिनेटली, बट हाँ एवरेज आई वुड कॉल कि हाँ टेक्निकली एवरेज हूँ. तो मेरे को डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के जो बेसिक्स हैं, बेसिक प्रोग्राम्स हैं, लॉजिक है वगैरह है, पसंद है, अच्छा लगता है, एंड वो कॉलेज में मेनली पढ़ा है मैंने. Okay, so in terms of projects and all, I would like to talk to you about projects. In terms of projects and everything, like you know, मेरे को आप बताओ कि आपने किस ऐप में काम किया है, या किस वेबसाइट पे काम किया है, या आपने कौन से प्रोजेक्ट्स बनाए हैं. गिव मी अ लाइक यू नो स्मॉल एक्सप्लेनेशन. तो मैम इनिशियली तो जैसे एक तो ऐप थी उदित के साथ, वो कॉलेज वाली, ठीक है, तो वो तो एंड्रॉइड के ऊपर पहला प्रोजेक्ट था, जहाँ mainly my main purpose was to make it design friendly, user friendly, and to fill it with proper content. Even the facts section, I think I designed it, I took 8 hours to design just the facts section of that particular app कि meaningful या useful लगे लोगों को. इसके बाद similarly we got an opportunity from the BBCU NSS cell कि अच्छा उनके लिए भी ऐप ऐसी बनाए. तो उसमें आई थिंक जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन अनिकेत मेरे फ्रेंड का रहा होगा. रिएक्ट तो उसने पूरी वो बनाई थी. तो उसमें थोड़ा बहुत जो हमारा रोल कुछ फायर बेस का इम्प्लीमेंटेशन में थोड़ा बहुत उस सेंस में रहा होगा. बाद में चल के मैम आपके अंडर हमने इमेज कैप्शनिंग का प्रोजेक्ट करा था. yes. जो काफी इंटरेस्टिंग था. वे भी सो उसके एप्लीकेशन मेरे को काफी एक्साइटिंग लगते थे. द वे फॉर लाइक फॉरेंसिक इन्वेस्टिगेशन में क्राइम सीन की डिफरेंट इमेजेस को देख के प्रिडिक्ट करना इन द लाइन की व्हाट कुड हैव हैपेंड, या दैट सॉर्ट ऑफ थिंग्स प्रोवाइडेड अस सम मोटिवेशन टू परस्यू दैट प्रोजेक्ट, लाइक काइंड ऑफ अ डिजिटल फोरेंसिक्स. हाँ डिजिटल फोरेंसिक्स एग्जैक्टली. एंड करेंटली मैम जो हमने मेजर प्रोजेक्ट पे काम करा है शिल्पा मैम के साथ, तो फॉर द लास्ट लाइक पास्ट ईयर्स इट वाज अ वेरी वंडरफुल आइडिया बाय माय कलीग इशिता कि we were I think trying to make an interactive game which would basically alleviate the
स्मार्टफोन एक्सपीरियंस फॉर विजुअली इम्पेयर्ड पीपल, मतलब नॉर्मल स्टिक्स तो आती ही हैं जैसे उनके लिए। तो वी वर ऑफ द व्यू कि शायद स्टिक में अगर हम ऐसी फंक्शनैलिटी इंटीग्रेट कर दें जिससे वो रीप्रोग्रामेबल इंट्यूटिव जेस्चर्स के साथ, जैसे फोन में कोई नंबर डायल करना है, कोई डिफरेंट टास्क है, वो कर सकते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली शिल्पा के साथ हमने वो प्रोजेक्ट जैसे परस्यू करा एंड वो कंप्लीट भी हो गया, हमारी स्टिक रेडी भी हो गई थी, इट वाज फुली फंक्शनल एंड रिसेंटली अवर पेपर हैज आल्सो गॉट एक्सेप्टेड इन अ वेरी प्रेस्टिजियस कॉन्फ्रेंस ऑफ IEEE इन मोबाइल एडहॉक सिस्टम। तो एक वो सॉर्ट ऑफ एक वैलिडेशन सा रहा है हमारे लिए कि हाँ यार प्रोजेक्ट अच्छा था, मतलब मीनिंगफुल था। तो ये सॉर्ट ऑफ मेरे 3-4 प्रोजेक्ट्स रहे हैं ड्यूरिंग दिस पीरियड। Okay, so how important it is for a engineering student like to choose his or her projects? Means ये जो projects है ये आप definitely आपका जो college level पे जो आपका पूरा resume बन रहा है, college level पे जो आपका profile बन रहा है, तो does it help in that? Means how important it is to choose like good projects at college level? तो मैम उसमें तो एक तो व्हाट आई हैव ऑब्जर्व्ड एंड इट माइट बी स्ट्रॉन्ग ऑब्जर्वेशनल बायस, बट जितना मैंने लोगों में देखा है, पीपल आर रनिंग आफ्टर प्रोजेक्ट्स व्हिच वुड बी वैल्यूड बाय कंपनीज हु आर कमिंग टू रिक्रूट देम। कि जैसे अगर आज कुछ हॉट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, सपोज लेट्स से न्यू बज़वर्ड्स आजकल ML AI ब्लॉकचेन है, तो यू आर ईगर टू डू समथिंग। अच्छा यार ब्लॉकचेन से कुछ देखते हैं क्या कर सकते हैं, कि काफी नया सा चीज है, मार्केट में कुछ ज्यादा है नहीं, कंपनीज अप्रिशिएट करेंगे और सीवी में ऐसी चीज दिखना जो लोगों ने सुनी ना हो, लोगों को लगता है कि अच्छा हाँ ये काफी इम्प्रेस करेंगे, मजेदार सा, हाँ इंप्रेसिव सा टॉपिक रहेगा। एक तो वो लोगों का व्यू रहता है, बट मेरी जो समहाउ परसेप्शन रही है, जैसा मैं बता रहा था कि समथिंग विच जो मेरे को मीनिंगफुल या पर्पसफुल लगे, जैसे कि जो कॉलेज की एप्स थी, जैसे मेरे को उसकी नीड लगी, हाँ यार कॉलेज की ऐप होनी चाहिए। अब मैंने तब ये नहीं सोचा कि अच्छा एंड्रॉइड की कितनी वैल्यू है, कल को मेरे को कोई स्टेटस प्रेस्टीज मिलेगी नहीं मिलेगी, या अभी भी इमेज कैप्शनिंग या जो हमने विजुअली इम्पेयर्ड के लिए बनाया है, इसको किस लाइट में लोग देखेंगे, दैट इज नॉट मोर ऑफ अ कंसर्न फॉर मी। मेरा मेन कंसर्न है सर प्रोजेक्ट इंटरेस्टिंग हो, उसमें करते हुए मजा आ रहा है, अच्छा आइडिया है, उस पर बिल्ड कर रहे हो, कुछ कुछ चैलेंजेस फेस कर रहे हो एंड यू आर देन उनको फेस कर रहे हो, चर्न आउट कर रहे हो धीरे धीरे। तो मेरे लिए वो आई थिंक प्रोजेक्ट के लिए जो मेरे लिए इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट है, मेरे लिए वो है पर्टिकुलरली। सो सबके लिए वेरी कर सकता है, दैट कैन वेरी एंड आई डू नॉट से कि कुछ अच्छा है कुछ बुरा है, मतलब सबका अपना ओपिनियन है। ओके, मैं यहाँ पे ना कुछ कहना चाहूंगी। आई वुड लाइक टू से दैट जैसे ये जो जैसे आपने सही कहा कि स्टूडेंट्स मतलब इन अ वे दे वांट टू फील लाइक सी गुड impressive words and technologies on their resume so that companies impress हो जाए। बट आपको नहीं लगता कि प्रोजेक्ट चूज करने का मेन मोटिव होना चाहिए कि सॉल्विंग अ प्रॉब्लम? मींस लेट्स से देखिए बेसिकली हम आसपास जो प्रॉब्लम्स देखते हैं उनका अगर कोई टेक सोल्यूशन, डिजिटल सोल्यूशन, कंप्यूटर साइंस सोल्यूशन है, so don't you think students can there are like n number of projects students can pick up? Definitely ma'am. So what was I think implicit in what I said is definitely when you are picking up something, it should be meaningful in solving something as well, which is currently an issue faced by public at large. Yes. तो वो तो obviously concern है कि जो real life concern है regarding let's say environment है, जैसे हमारे कॉलेज से मेरे को पता है एक एयर कॉग्नाइजर करके एप्लीकेशन डेवलप हुई थी जो बहुत ही जबरदस्त थी, जो दिल्ली की पॉल्यूशन के रिगार्डिंग थी। तो दैट वाज समथिंग वेरी मीनिंगफुल एंड व्हिच आल्सो टारगेटेड द करंट प्रॉब्लम वी आर फेसिंग। बट इसमें मैम मेरा जो एक स्लाइटली एक्सटेंडेड ओपिनियन है कि टेक्नोलॉजिकली आई थिंक समटाइम्स आई हैव नोटिस कि हम एकदम प्रॉब्लम को एट इट्स हार्ट हम उसको सॉल्व नहीं कर रहे, उसकी जो जड़ है या रूट कहते हैं उसको सॉल्व ना करके टेम्पररी सॉल्यूशंस की ओर जाते हैं। जैसे अगर इफ देयर इज अ प्रॉब्लम 1, आई एम फाइंडिंग एन आंसर 1 and that answer 1 is again leading to a problem 2, and so that is a sort of a perpetual loop जिसमें हम फंस के थोड़ा शॉर्ट टर्म या ज्यादा लॉन्ग टर्म ना सोच के इनिशियली देखते हैं अच्छा हाँ यार ठीक है इससे सॉल्व हो रहा है करते हैं, बट जैसे इवन मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं, बट देयर वर सम स्टार्टअप्स जो थोड़ा नेचुरली जैसे कल्टिवेटेड प्लांट्स या फूड पे फोकस करते थे। आई वाज रीडिंग अबाउट दैट, उसमें समहाउ आई फेल्ट कि इनिशियली इट लुक वेरी इंप्रेसिव कि सर जैसे एक ये प्रॉब्लम 1 है, ये प्रॉब्लम हट गई, बट इट वाज फर्दर लीडिंग टू सम वाइड एरे ऑफ वाइड नंबर ऑफ इश्यूज जो प्रोबेबली कंसर्न हो सकते हैं फ्यूचर में, बट हम उनके लिए इतना बॉदर नहीं करते। हमें लगता है कि सर अभी के लिए करो, ये ठीक है, बाद में सोचेंगे। तो वो माइंडसेट सॉर्ट ऑफ मेरे को टेक्नोलॉजी के थ्रू
ज्यादा लगता है कि थोड़ा फैल सा गया आजकल। हाँ, आपको पता है तभी दिस इज द रीजन व्हाई द गवर्नमेंट thought of starting this all India competition called Smart India Hackathon. उसमें जो problems दिए जाते हैं ना, those are like real problems faced by the ministries or the the entire initiative under that ministry. तो तभी real problems दिए जाते हैं and बच्चों को बोला जाता है कि आप real problems को का solution find करें. मुझे लगता है इसका one of the main reason is जैसे for example data means आप अगर ऑनलाइन देखोगे आपको दूसरे कंट्रीज के जो कि जिन कंट्रीज में ज्यादा सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है उनका डेटा कितना ज्यादा मिलता है लाइक डेटा सेट्स एंड डेटा, बट हमारी कंट्री स्पेसिफिक जो डेटा हमें चाहिए होता है ना ये ना मतलब इट्स नॉट फ्रीली अवेलेबल इन द सेंस जैसे अगर मेरे को कुछ वेदर से रिलेटेड डेटा चाहिए तो आपको वो मेट ऑफिस जाना पड़ेगा टू गेट दैट डेटा। मतलब मैं ये बोलना चाह रही हूँ, तो आपने ऐसा फेस किया है कि जैसे लाइक हमारे कंट्री के लिए जो हमें जो बेसिकली जो इनपुट चाहिए वो हमें नहीं मिलता? तो मैम सॉर्ट ऑफ मेरे प्रोजेक्ट्स में तो मे बी ये इतना इम्पोर्टेंट इशू नहीं रहा हो जो मैंने फेस करा इन पर्टिकुलर। जैसे अपार्ट फ्रॉम इमेज कैप्शनिंग जहाँ हमको डेटा सेट चाहिए था वो फॉर्चुनेटली हमको सॉर्ट ऑफ मिल गया था जो जिससे हमारा काम चल गया था, अपार्ट फ्रॉम जो हमने अपना ओन डेटा सेट बनाया होगा। बट जैसे आपने बात करी डिफरेंट इवन जैसे इलेक्ट्रिसिटी का डेटा सेट है या कह लो अनएम्प्लॉयमेंट का डेटा सेट है, हमारे इंडिया में सीन यह है कि इतनी सारी डिफरेंट बॉडीज हैं जो कि मोर और लेस ओवरलैपिंग काम करती हैं। जैसे मतलब उनकी एब्रिविएशन भी लंबी लंबी सी होंगी। जैसे एग्जैक्टली मतलब नोबडी स्पेसिफिक, मतलब हर कोई हर काम में ही तो मतलब देर आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इन दैट सेंस। तो हर का ओवरलैपिंग है तो तुम भी एट टाइम्स कंफ्यूज हो जाते हो कि यार अच्छा इसकी सुननी है इसकी सुननी है क्या है। जैसे इवन फॉर स्टैटिस्टिक्स जैसे जो अनएम्प्लॉयमेंट का रेट रिसेंटली आया था उसकी भी अलग आई डेव डीपर इनटू दैट कि अच्छा एग्जैक्टली चीज मुद्दा क्या है। तो 3-4 अलग अलग तुम कुछ पढ़ो 3-4 अलग बॉडीज मिल जाती है कि अच्छा एज पर दिस सो एंड सो, एज पर दिस सो एंड सो। तो सॉर्ट ऑफ एक इंडिया में मेरे को लगता है जो डेटा कंसोलिडेट करने वाला काम है कि प्री प्रोसेसिंग हो और एक जगह पे डेटा प्रॉपर अवेलेबल हो, वो सॉर्ट ऑफ इस डायरेक्शन में एक प्रॉपर फॉर्मेट हो। हाँ, तो उस डायरेक्शन में डेफिनेटली वी नीड टू वर्क एंड उसमें आई फील द लार्जर रोल हैज टू बी प्लेड बाय आवर गवर्नमेंट। मतलब क्योंकि वो ऐसा डेटा है जो इलेक्ट्रिसिटी का डेटा है। अब ऑब्वियसली जो डिफरेंट स्टेट इलेक्ट्रिसिटी वाली बॉडीज होंगी बीएससीएस होगी जो डिफरेंट होंगी दे कैन ऑलरेडी प्रोवाइड यू। इतने प्राइवेट एंटिटीज अभी उस सेक्टर में इतनी है नहीं कि आप डेटा वहां से ले सको। तो उस सेंस में मेरे को लगता है इसमें ज्यादा रोल जो प्ले करने वाला है दैट इज अप टू द गवर्नमेंट। ओके नाउ आई वांट टू आस्क जैसे फॉर एग्जांपल आप तो अभी स्टूडेंट ही हो, सो आपने इंजीनियरिंग में ऐसा लाइक हैव यू फेस्ड कंपटीशन मींस आपको कभी भी ऐसा लगा है कि व्हाट लाइक जैसे फॉर एग्जांपल काइंड ऑफ अ पीयर प्रेशर टू मतलब बी गुड एट स्टडीज लाइक अच्छे नंबर लाना या अच्छे प्रोजेक्ट्स करना या लाइक कॉम्पिटिशन्स जीतना, जैसे आपने बताया कि आजकल हैकाथॉन्स आर लाइक वेरी कॉमन, सो कंपटीशन जीतना, या जैसे आपने बताया ना कि जैसे कोई नई नई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखना कि ओके मेरे को ये आती है आपको नहीं आती है, so have you like participated and faced competition? Obviously just like every other human I am not immune or impervious to this competition. I still remember how I used to be dreaded by seeing seemingly elite people with stellar academic records कि अच्छा यार इसने 10-15 हैकाथॉन जीते हैं, ये यहाँ भी गया है वहां भी गया, इसकी इस एनटीएससी में इतनी रैंक है, इसकी इतनी रैंक है। खुद को देखो तो लगता है तुमने तो कुछ करा ही नहीं आज ऑफ लाइफ में। But I think I have grown to believe that each person is unique in his own regard and he has to be appreciated for that. And ये तुम्हें खुद को अपने आप को करना है। Like there would be, I understand there would be 100 things जहाँ मैं लोगों से बहुत बदतर भी होऊंगा, but 100 चीजें ऐसी भी होंगी जहाँ मैं लोगों से बेटर भी होऊंगा। So the whole focus या idea should not be कि हम लोगों को देखें कि यार अच्छा इसके पास ये है ये नहीं है। ठीक है, डेफिनेटली इफ यू आर लुकिंग तो इस पर्सपेक्टिव से देखो कि अच्छा यार व्हाट आई कैन लर्न फ्रॉम देम कि क्या पॉजिटिव चीज है। बट सॉर्ट ऑफ आई फील जितना जैसा कल्चर आजकल थोड़ा जितना पॉइजनस सा बन गया, आई थिंक जितना कंपटीशन है डूइंग दैट इज सॉर्ट ऑफ काफी मुश्किल कि तुम लोगों को देख के ये एनवी कंपैरिजन जेलसी की जो फीलिंग्स हैं ये ज्यादा आई थिंक हमें पेनिट्रेट करती है इंस्टेड ऑफ जो थोड़ी गुडविल वाला फैक्टर है या एप्रिसिएशन वाला फैक्टर है। तो वो डर तो एक रहता ही ऑब्वियसली। बट हाँ जैसा मैम एज यू मेंशन मैं भी जैसे डिफरेंट हैकाथॉन्स में गया था,
2-3 में कुछ जैसे माइक्रोसॉफ्ट के थे, एक वन वाज ऑर्गेनाइज्ड विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ प्रोफेशनल स्टडीज, एंड आई कैन से कि हाँ मैं भाई कहीं भी जगह फर्स्ट सेकंड थर्ड नहीं आया हूँ, डेफिनेटली आई वाज अमंग्स टॉप 10 टॉप 7, बट आई डू नॉट फ्रेट अबाउट कि अच्छा यार ये बंदा 10 जगह फर्स्ट आया, मैं कहीं नहीं आ पाया, ठीक है यार वो आया होगा, मैं नहीं आया. I sort of took it as an opportunity to learn कि किन areas में I was lacking. Like initially I realized I was very hesitant interacting with the large audience. But I think going to hackathons, presenting your solution, standing in front of a crowd and speaking sort of drives away this hesitance to face public. So ऐसी छोटी छोटी चीजें तुम डिफरेंट जगह से पिक करते चलते हो. मतलब ऐसा नहीं कि तुम्हें उसका कुछ फर्स्ट ही आना तुम्हारे लिए एक सॉर्ट ऑफ वैलिडेशन होगा कि हाँ तुमने कुछ करा. उसके अलावा यार तुम वहां पे गए, तुमने कुछ प्रेजेंट करा, ठीक है, कुछ सीख के आ गए, 4 और अच्छे लोगों के सोल्यूशन देखे होंगे, कुछ आइडिया लगाओ कि चलो अच्छी प्रेजेंटेशन कैसे बनानी है, बोलना कैसे है, या और कैसे सोच सकते हैं. ये छोटी छोटी चीजें भी जो हम पिकअप कर रहे हैं, आई थिंक ये इनको डिसरिगार्ड नहीं करना चाहिए कि ये तो फालतू, ऐसा नहीं मानना चाहिए. आई थिंक थोड़ा कंटेंटमेंट फैक्टर, एक सेटिस्फैक्शन अपने साथ रखना चाहिए हर टाइम पे, जिससे हम थोड़ा अपनी सेल्फ स्टीम को एकदम बहुत गिराए भी ना, और ना ही बहुत ही ज्यादा एरोगेंट हो जाए कि देखो मेरे पास क्या क्या है, तुम्हारे पास क्या है वाला सीन. तो सॉर्ट ऑफ वो है सीन.